ہمارا طیارہ یورپ سے پاکستان کی طرف اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ موجیں ہی موجاں، جو مرضی کر لو. آپ نے دیکھا ہے آزاد ہوتے ہوئے پاکستان کو؟ ہاں، دوسری جماعت میں پڑھتا تھا. ہندو ماسٹر مجھے پڑھاتا تھا. اسکول ہمارا کچا تھا اس ٹائم، میں دوسری جماعت میں پڑھ رہا ہوتا تھا. خان صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس پہ عمل درآمد کروائیں. السلام علیکم ناظرین، دس از می کنزا فرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹپ ٹاپ. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک. امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے اور محفوظ ہوں گے. جیسے کہ کرونا ہے اور ہم باہر نہیں نکل سکتے، اور جس طرح سے ہم پچھلے سالوں میں جشن آزادی مناتے آئے ہیں ویسے نہیں منا سکتے، تو میں آپ کے لیے ایک پروگرام لائی ہوں تاکہ آپ گھروں میں بیٹھ کر آزادی سے لطف اندوز ہو سکیں. تو آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں. ہم یہاں سے پہ لوگوں سے بات کریں گے آزادی کے حوالے سے، ان کے نزدیک آزادی کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، اور جیسے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ندیم. تو میں آج جیسے کہ 14 اگست ہے اور میں 14 اگست کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آزادی ہم 14 اگست والے دن آزاد ہوئے تھے اور پاکستان کو آزاد ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آزادی لی تھی وہ پورا ہو گیا؟ دیکھیں، آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. باقی یہ جو کویسچن ہے کہ کیا مقصد پورا ہو گیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بحیثیت انڈیویجول تو بہت سارے لوگوں نے ترقی کی اور بہت آگے گئے، لیکن بحیثیت قوم ہم ترقی نہیں کر سکے. ہر روز گزرنے والا جو دن پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے. بحیثیت قوم آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں اتفاق نہیں ہے؟ اتفاق بھی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن مخلص لیڈرشپ آج تک نہیں نصیب ہوئی. اٹ از دی ریئل ان کے ڈرا بیک. مخلص لیڈر آج تک نہیں ملی. اگر وہ مل جائے یا مل جاتی ہیں تو آج پاکستان کی پوزیشن کچھ اور. میرے نزدیک ایک سونے کی چڑیا ہے، لیکن اس کا استعمال نہ کسی نے کیا ہے، نہ ابھی تک ہوا ہے، نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بس میری رب سے یہی دعا ہے کہ اس کو ایک اچھا ایماندار مخلص اور دیندار لیڈر ملے جو اس کو ایک ڈائریکشن دے، اس کے عوام کو جگائے. بال صاحب جیسے جگانا چاہتے تھے سوئی ہوئی عوام کو، آج بھی عوام بحیثیت قوم وہیں پہ سوئی ہوئی ہے. جی انشاءاللہ ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسا حکمران ہوتا ہے. نہیں، عوام جیسی ہوتی ہے ایسا میں اس سے تھوڑا مختلف سوچتا ہوں. جیسی حکمران ہے عوام ویسی بن جاتی ہے. آج حکمران اچھے آ جائیں، تھوڑی سختی کریں تو عوام بھی جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو گا. کیونکہ مجھے اس کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے. لیکن حکمران کو لانے والی بھی تو عوام ہی ہوتی ہے نا. عوام ہوتے ہیں لیکن 100% عوام نہیں ہیں. بس جو بھی آپ کہہ لیں، اگر انہی میں سے سلیکٹ کیا ہوا حکمران اچھا آ جائے گا تو عوام یقیناً بہتر ہو جائے گی. اور میرے نزدیک ایسے ہی ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ جو لڑکے پڑھتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب ہمارا طیارہ یورپ سے پاکستان کی طرف اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ موجیں ہی موجاں، جو مرضی کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب ہم پاکستان سے یورپ کی طرف فلائی کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں کرنا، اب کوئی خرابی نہیں کرنی ورنہ پکڑے جائیں گے. تو اٹ از دی اونلی مائنڈ وچ چینجز ایز دی پلیس چینجز. سو دیر شوڈ بی اے گڈ گورننس. If the governance and the politician they are good, then it is not difficult to make the people good. اوکے، تھینک یو سو مچ. Thank you. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بشیر احمد. میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے کہ 14 اگست ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ابھی 80 سال ہے. تو آزادی کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس جگہ کہ مجھے 7 سال کی عمر تھی. آپ 7 سال کے تھے، مطلب آپ نے دیکھا ہے آزاد ہوتے ہوئے پاکستان کو. ہاں، دوسری جماعت میں پڑھتا تھا. ہندو ماسٹر مجھے پڑھاتا تھا. اسکول ہمارا کچا تھا اس ٹائم، میں دوسری جماعت میں پڑھ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آزادی کے وقت اس وقت لوگوں میں کیا جوش و جذبہ تھا اور کس طرح سے کتنی مشکلوں سے ہم نے پاکستان کو آزاد کروایا؟ دیکھو، جو ہمارا علاقہ تھا، جیسے میں رہتا ہوں شیخ پورہ میں، ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی گڑبڑ نہیں ہوا تھا. کوئی نہ سکھوں نے کیا تھا نہ مسلمانوں نے کوئی کیا تھا ہمارے میں. بڑے رام سے وہ بھی جہاں سے میں پہلے کہتے کہ رہنے والا ہوں، میں ادھر سے نہیں آیا. میں پہلے کہا ادھر سے رہنے والا ہوں پاکستان کے بننے سے پہلے. تو وہ بڑے رام سے ادھر سے نکل گئے تھے اور ادھر سے جو لوگ سے مسلمانوں نے اپنے رام سے آ گئے تھے ہمارے. مطلب کہ ہم مسلمانوں نے انہیں اپنے وطن جانے دیا تھا، جو ہندوستان جانا چاہتے تھے، ہم نے ان کو ان کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے اور ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا. بالکل کوئی روڑا نہیں لٹکایا. بڑے رام سے وہ ان کو گاڑی پہ بیٹھ کے چلے گئے تھے یہاں سے. ٹھیک ہو گیا.
तो आपने कुछ किया आज़ादी के लिए? आपका क्या जोश और जज्बा था? आप क्या सोच रहे थे कि हम तो स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पिछली साइड पे मास्टर साहब हिंदू, हम तो उसके घर से कुर्सी उठा के ले आए थे, किताबें उठा के ले आए थे, पेंसिलें उठा के ले आए थे, मतलब जो बच्चों का काम होता है। मतलब इतनी उम्र तो हमारी ज़्यादा नहीं था, मतलब लेकिन उनको जानते हैं हम सबको, मतलब सिखों को भी, उनको भी सबको जानते। तो कोई आपका दोस्त जो हिंदू हो और वो यहाँ से वहाँ चला गया हो? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं यहाँ तक, उस टाइम मेरा कोई दोस्त नहीं। किसी को मिस कर रहे हो जो यहाँ पर रहते हैं और वो चले गए हों? हाँ जी, मुझे मज़ा भी याद नहीं, मतलब आप तो मैं पहले रहा 7 साल की उम्र को, उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं रहा कि कौन हो सकता कौन नहीं था, मतलब लेकिन पढ़ते इकट्ठे रहे हम हिंदू मास्टर। इतना पता है कि जब शेखपुरे में आग लगा था तो उस टाइम को हमें पता चला कि ये आज़ादी का वक्त है, लोग जा रहे हैं अपने मुल्क को। ठीक है, तो आप आज की कौम को, आज की मुसलमान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से हम मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की, तो आप आज की कौम को क्या मैसेज देना? तो इसके इस टाइम जो मुसलमान हैं वो तो बिल्कुल भूल गए हैं आज़ादी को। जो है इस टाइम नस्ल जो जा रही है ना, उसको कुछ पता नहीं मुसलमानों को। अभी जो हमारे हुकूमतें आ रही हैं, कर रही हैं, और ये सिखों को इतना कहा, सबसे ज़्यादा नुकसान सिखों ने मुसलमानों को बचाया है। पूरे शादी के वक्त जितना ही नुकसान पहुँचाया ना, जो उधर से लोग आए हैं उन्होंने हम के बताया, हमारी अराई बरादरी के लोग थे वो मुझे आके बताते रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो किया है पाकिस्तान का वो हिंदू सिखों ने किया। हिंदू लोग डरपोक थे उस टाइम, वो नहीं ऐसा काम करते थे, मतलब लड़ाई झगड़े के लिए। अभी ये हुकूमत जो आई है, ये सिखों को डेरे, ये मंदिर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको जो है पूरा पैसा उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुश्मन कौम जो है वो सिख है, मुसलमानों। लेकिन सिख तो कहते हैं ना, हिंदुओं के पीछे हिंदुओं ने सिखों को भड़काया और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया। नहीं, हिंदुओं ने भड़काया, लेकिन हिंदुओं ने इतना नुकसान नहीं किया। हम इधर जब रेलवे पे गाड़ियाँ आती थी तो हम स्टेशन पे आते थे, गाड़ियाँ भरी होती थी, खून की लाशों की भरी हुई होती थी। वो सब यही बात आती है कि सिखों ने काफिला, सिखों ने हमला किया, सिखों ने हमला किया, सिखों ने हमला किया। अभी भी मेरे पास होते लोग जागते जीते हैं जो पाकिस्तान के बने गए, वो जानते हैं सब, वो सब बताएंगे कि सिखों जो किया सिखों ने किया। हिंदुओं ने किसी ने उधर से आने वाले को हमला नहीं किया, और किसी इलाके में किया होगा, ये जो लोग इधर हैं इन पर नहीं किया। ठीक हो गया। तो आज की कौम को आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से जिएँ? और जैसे कि आज़ादी का जो हमारा असल मकसद था आज़ादी हासिल करने का, क्या वो पूरा हो गया? वो नहीं हुआ, ऐसे तो ठीक ही भूल गई है ना, दुनिया ठीक ही भूल गई है। जो पाकिस्तान के लिए जो काम करना था, जो होना था अल्लाह को, उसके बाद ऐसे सब भूल गए हैं, उसको तो कोई जानता नहीं है, किसी को नहीं याद। जो अच्छे से पुराने लोग हैं वो भी भूल गए। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तूबा है। क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। अरे वाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे कि आज़ादी है, तो पाकिस्तान को आज़ादी हुए 73 साल हो गए हैं, तो आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था वो मकसद पूरा हो गया? नहीं, उसमें हम अभी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी मतलब हम इन प्रोसेस हैं, अभी हम वहाँ पे पहुँचे नहीं, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद हो जाएं। फ़िज़िकली तो हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन मेंटालिटी हमारी अभी भी कहीं ना कहीं वहीं अड़ी हुई है। हाँ, ये तो है कि हमारी मेंटालिटी, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही मतलब अभी तक वो प्रिजन है, अभी तक वो आज़ाद नहीं हुई। तो इस बारे में आपका क्या कहना चाहिए कि लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो जिस मकसद के लिए हमने इतनी सेक्रीफाइसेस दिए, हमारे आबा और अजदाद ने इतने सेक्रीफाइसेस दिए, तो उसके लिए हम कुछ तो कर सकते हैं? हमें क्या कहना चाहिए, मैं ये कह सकती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, रादर देन हम ये सोचें कि क्या होगा या लोग क्या कहेंगे या ये वो। क्योंकि अभी भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब कोरोना का इंसिडेंस था, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें जहर का टीका लगा के मार देंगे तो हमने एडमिट ही नहीं होना। तो ये इस तरह के जो थॉट प्रोसेस होते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसके लिए ये हो कि हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, हमें जो है जो फैक्ट्स हैं उनको देखना चाहिए, रादर देन कि हम इधर उधर की बातें सुन के और दूसरी चीज़ों को देख के डिसाइड करें। कि हमें आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ में आपको सुकून महसूस हो, जिस चीज़ में खुशी हो, वो कर लें? नहीं, जो हमारे सामने फैक्ट्स हों, जो हमारे पास सामने रियलिटीज़ हो, हमें उसको समझना चाहिए और इससे आपको फ़ायदा हो और मतलब आपको पता चले कि इससे फ़ायदा भी है, और उसके हर पहलू को सोच कर समझ कर फ़ैसला करें, ना कि ये कि लोग क्या कहेंगे इसके बाद। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसे ही यही मेरा पॉइंट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आज़ादी है और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 73 साल हो गया, 14 अगस्त का दिन है, तो आप मुझे बताएं कि पिछले साल की निस्बत आपका क्या जोश व जज्बा है आज़ादी के हवाले से? आज़ादी के हवाले से जोश व जज्बा तो वही रहेगा जो पिछले सालों में था और अब भी वही है, क्योंकि ये बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद इसको हासिल किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद ये हासिल किया गया है, तो इसको हम उसी तर्ज पे लेके चलें कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान आज़ाद किया था वो मकसद पूरा हो गया कि नहीं? मैं उसी तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ कि वो मकसद जो हमने जिस मकसद के तहत हासिल किया था वो मकसद हमें पूरा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे इसको हासिल किया था, हमें यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए, ठीक है ना जी। और यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में रिश्वत का दौर दौरा है, हर तरफ जहाँ भी आप चले जाएँ ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ खान साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया था उस पर अमल दरामद करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाइस्ता रियासत। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं 14 अगस्त के लिए ना अपने पोता पोती नवासा नवासी के कपड़े लेने आई हूँ। वाह जी वाह, मतलब बड़ा शौक है बच्चों को ग्रीन कलर में देखने का। जी। उनके क्या जज्बात हैं, क्या जोश व खरोश है उनमें कि आज़ादी है और क्या करेंगे वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जो ज़रा बड़े हैं वो उन्हें ये पता है, उसकी खुशी मनाते हैं। हम आज आज़ाद इसलिए कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। मुझे बताएं कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आज़ाद हुआ था क्या मकसद वो पूरा हो गया? पूरा तो देखे कभी कोई मकसद होता ही नहीं ना, वो ही इतना हुआ, लेकिन फिर भी हम हिंदुओं के उससे आज़ाद है। फिर भी हम खुश हैं जहाँ पर भी हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे हैं। हम बाहर के मुल्कों से उससे हम आज़ाद हैं, एक नंबर के शहरी हैं अपने मुल्क। खुद मुख्तार हैं, मुसलमान अपनी ज़िंदगी खुद जी सकते हैं, खुलेआम अपने इस्लाम का बोलबाला कर सकते हैं। जी इस्लाम। ठीक है, आपके ख़्याल में आज़ादी की क्या अहमियत है? जो कौमें आज आज़ाद नहीं हैं, जैसे कि कश्मीर है, तो उनके लिए कुछ हमदर्दी के पैगाम और कुछ आज़ादी की अहमियत जो आपकी नज़र में है? आज़ादी की तो बहुत अहमियत है। कश्मीरी तो सांस नहीं ले सकते आज़ादी से, हर चीज़ की मुश्किल हुई है। भारत ने गासबाना कब्ज़ा कर लिया उस पर। जी, तो वो बेचारे तो कैद ही हैं एक किस्म के, 1 साल हो गया पूरा। हाँ जी, हमारी तो दुआएं हैं कश्मीर के लिए भी और अपने मुल्क पाकिस्तान। ताला कश्मीर आज़ाद होगा। हमारी तो सांस सांस में उनके लिए दुआ है, क्योंकि वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। कश्मीर हमारी शहर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने यहाँ पर लोगों से बात की आज़ादी के हवाले से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और काफ़ी मज़ा आया बात करके इनसे। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा। आप हमें नए नए आइडियाज़ देते रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में। हम आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।